پاکستان دنیا میں دہشت گردی سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے۔ حال ہی 2024 میں ٹی ٹی پی نے 500 سے زیادہ اٹیکس کیے، جس میں 1500 سے زیادہ پاکستانی لوگوں کی جان لی۔ پاکستان نے دسمبر 2024 میں افغانستان کے بارڈر کے قریب ٹی ٹی پی کے مضبوط قلعوں پر ہوائی حملے کیے۔ لیکن ان حملوں میں 46 افغان شہری بھی مارے گئے۔ اب تک پاکستان اور افغانستان کے دوران 3 بڑی ہجرتیں ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی ضیاء کے دور میں، پھر 9/11 کے بعد امریکہ نے جب افغانستان پر ایک بہت بڑا حملہ کیا، اور تیسری بار جب 2021 میں طالبان دوبارہ حکومت میں آئے۔ دوستو، ہمارے خطے میں مشکل سے ہی کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہوگا جس کی جڑیں انگریز سامراج سے نہ جا ملتی ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کر لیجیے۔ 19ویں صدی میں رشیا اور برطانیہ دنیا میں طاقت کی دوڑ میں مد مقابل تھے۔ انگریز افغانستان پر اس لیے کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ رشیا کو انڈیا تک نہ آنے دے۔ بات ہے 19ویں صدی کی، سال ہے 1893 کا، جب انگریز سامراج نے برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان ایک فرنٹ لائن کھینچی۔ اس بارڈر لائن کھینچنے سے پہلے انگریز افغانستان سے ڈائریکٹ 2 جنگیں لڑ چکا تھا، لیکن دونوں بار اس کا غلبہ کچھ زیادہ دیر رک نہ سکا۔ ڈیورنڈ لائن معاہدے میں طے پایا کہ انگریز افغانی بادشاہ کو 12 لاکھ روپے سالانہ معاوضہ بھی ادا کریں گے۔ اس کا فائدہ انگریز سامراج کو یہ ہوا کہ اب اس کے پاس ایک ڈیفنس لائن تھی جہاں وہ اپنی ملٹری اسٹیبلش کر سکتے تھے، اور اگر اس بارڈر کی اس سائیڈ میں رشیا کچھ کرتا تو وہ ڈائریکٹ برٹش حکومت سے جنگ کے مترادف سمجھی جاتی۔ اب افغانستان رشیا اور برٹش انڈین امپائر کے بیچ ایک بفر زون کا کردار ادا کرنے لگا۔ 2640 کلومیٹر لمبی یہ لائن گلگت سے لے کر بلوچستان تک کھینچی گئی۔ کچھ افغان تاریخ دانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے معاہدے کی لمٹ 100 سال تھی، لیکن اس کا معاہدے کے اوریجنل ٹیکسٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ پاکستان بننے کے بعد سپٹمبر 1947 میں افغانستان نے پاکستان کے وجود کے خلاف ووٹ دیا۔ ان کی یہ کلیم تھی کہ پاکستان کے شمال مغربی افغانستان سے ملحقہ سرحد پر موجود پشتون عوام کو آزادی کا حق ملنا چاہیے، یعنی دوسرے لفظوں میں پشتونوں کے لیے علیحدہ وطن پشتونستان بننا چاہیے۔ لیکن صرف ایک ماہ بعد اکتوبر 1947 میں افغانستان نے اپنا ووٹ واپس لے لیا۔ اندرون خانہ افغانستان اس لیے پشتونستان کو سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس طرح کی لوکیلٹی میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی، اور دھیرے دھیرے افغانستان اس کو اپنا حصہ بنا لے گا۔ 1963 میں امریکن ہسٹری کے ایک پروفیسر جارج مونٹیگنو نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا، افغان ایجنٹ پاکستان سے ملحقہ پختون علاقوں میں کافی عرصہ کام کرتے رہے۔ وہ عوام میں کیش، اسلحہ، حتیٰ کہ سیٹلائٹ فون بھی تقسیم کرتے رہے تاکہ ان کی وفاداری پاکستان کے بجائے افغانستان حکومت سے جوڑے رکھیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ افغانستان اپنے ملک کے اندر موجود پشتون لوگوں کی سالمیت اور علیحدہ وطن کی بات نہیں کرتا، صرف پاکستان میں موجود پشتون لوگوں کو علیحدہ وطن کے لیے ابھارتا ہے، حالانکہ پاکستان میں افغانستان سے زیادہ پشتون آباد ہیں۔ 1960 میں افغانی وزیر اعظم سردار داؤد نے پاکستان کے علاقے باجوڑ میں باقاعدہ ایک آرمی اس سلسلے میں بھیجی، جس کو نکالنے میں پاکستان اور لوکل قبائلی لوگوں کو 1 سال لگا۔ اس کے بعد سے پاکستان نے افغانستان کو بھی چیلنج کرنا شروع کیا کہ وہ اپنی سائڈ پہ موجود پشتون لوگوں کو یہ حق دے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں۔ 17 جولائی 1973 کو تاریخ میں ایک نیا موڑ آیا جب سردار داؤد نے افغانستان کے اندر ظاہر شاہ کا تخت الٹ دیا۔ اب داؤد پاکستان میں علیحدگی پسند پشتون اور بلوچیوں کو سپورٹ کرنے لگا۔ خیر، داؤد کو ذوالفقار علی بھٹو نے ڈپلومیٹک طریقے سے ڈیل کیا اور معاملات زیادہ نہ بگڑے۔ ٹو بی فرینک، افغان اور پاکستان کی ہسٹری زیادہ دیر ایکشن سے خالی نہیں چل سکتی۔ دسمبر 1979 کو افغانستان پر روس نے حملہ کر دیا۔ اب اس جنگ کا متحرک کوئی علاقائی غلبہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ نظریہ کی جنگ تھی، کمیونزم اور کیپٹلزم کی جنگ تھی، امریکہ اور رشیا کی جنگ تھی۔ اب جغرافیائی طور پر افغانستان سے جڑے ہونے کی وجہ سے پاکستان
पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ गई। अब एक तरफ तो पाकिस्तान के मशरिक में भारत और मगरिब में रूस की फौजें थी, दूसरी तरफ जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत को पूरी दुनिया में कोई अहमियत हासिल ना थी। ज़ियाउल हक ने इंडिया और रूस को पाकिस्तान की आज़ादी के लिए एक खतरा करार देकर अफगान जंग में हिस्सा लिया। पाकिस्तान में मुजाहिदीन की एक फौज तैयार की गई जिसको रूस के खिलाफ लड़वाया। इसके बदले ज़िया को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली और पाकिस्तान में अमेरिकी डॉलर्स का फ्लो बढ़ने लगा, क्योंकि अब हम अमेरिका की मदद से रूस के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन पर लड़ रहे थे। 1979 से 1989 तक पाकिस्तान को ऑलमोस्ट $3 बिलियन इमदाद में मिली। अब 1989 में रशिया तो चला गया, लेकिन पाकिस्तान ने जो मुजाहिदीन तैयार किए थे और जो ज़ियाउल हक ने सो कॉल्ड इस्लाम मुआशरे में नाफिज किया था वो पीछे रह गया। पाकिस्तान ने कुछ मुजाहिदीन को कश्मीर की तरफ डाइवर्ट किया और कुछ की सपोर्ट अफगानिस्तान में जारी रखी और अफगानिस्तान में सिविल वार का समा बन गया। इसका असर पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी हुआ। 1990 लाहौर ट्रेन बॉम्बिंग्स में 21 लोग मारे गए और 30 जख्मी हुए। हैदराबाद में 7 बॉम्ब धमाके हुए, 43 लोग मारे गए और 110 जख्मी हुए। यही वो दौर था जब सिपाही साहबा जैसी सुन्नी और सिपाही मोहम्मद जैसी शिया शिदत पसंद तंजीमें बनी, जिनके आपस के मुकाबलों में हजारों लोगों की जाने गई। रशिया के खिलाफ इस जंग में 15 लाख अफगानी मारे गए, 40 लाख लोग पाकिस्तान और ईरान हिजरत कर गए और तब से अब तक अफगानिस्तान मुसलसल किसी न किसी तरह हालत जंग में ही है। मजीद इस जंग में पाकिस्तान में मंशियात आम हुई, गैर कानूनी असलहा की स्मगलिंग में इजाफा हुआ। 1989 में जब सोवियत ने अफगानिस्तान को छोड़ा तो पीछे सरदार नजीबुल्लाह की एक कमजोर कम्युनिस्ट हुकूमत छोड़ गए। ये हुकूमत 1992 तक चली। इसके बाद मुख्तलिफ मुजाहिदीन के ग्रुप्स में नस्ल और कौम की बेस पर जंगें छिड़ गई। इसी अफरा तफरी की सूरत हाल में 1994 में कंधार के अंदर एक नया गिरोह उभर के सामने आया, जिन्होंने अपना नाम तालिबान रखा। इस गिरोह के ज्यादातर अरकान का ताल्लुक कोयटा और पेशावर के मदरसों से था। मुल्ला मोहम्मद उमर तहरीके तालिबान के बानी बने। मुल्ला उमर की एक आंख रूसी फौज के खिलाफ लड़ते हुए जाहिर हो गई थी। बहुत सी मशहूर रवायात के मुताबिक तालिबान का अरूज एक हीरोइक एडवेंचर से हुआ। कंधार में कुछ जंगजू सरदारों ने कुछ मकामी नौजवान लड़कियों को अगवा कर लिया था। मुल्ला उमर ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर उन सरदारों से लड़ाई की और उन लड़कियों को बाजियाब कराया, जिससे उनकी और उनकी जमात की मकबूलियत पूरे अफगानिस्तान में फैल गई। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुसलसल जंग से तंग आ चुका था और चाहता था कि अफगानिस्तान में उनकी हिमायत याफ्ता एक हुकूमत कायम हो, जिसका झुकाव इंडिया के बजाय उनकी तरफ हो। और पाकिस्तान को इसलिए भी अफगानिस्तान में अमन चाहिए था ताकि अफगानिस्तान के जरिए वस्ती एशियाई मुमालिक से तिजारत हो सके। अब पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू किया। तालिबान ने 1994 से अफगानिस्तान के कई इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया और साथ साथ जहाँ जहाँ उन्होंने फतवात की वहाँ स्ट्रिक्ट शरीयत का नफाज भी यकीनी बनाया। इस्लामी सजाएं नाफिज की जो पब्लिकली एग्जीक्यूट की जाती थी। फाइनली सितंबर 1996 में पूरे अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की मदद से कब्जा हो गया। तालिबान ने अफगानी सदर नजीबुल्लाह को पब्लिकली सजाए मौत दी और उसकी लाश को बीच काबुल में लटका दिया। तालिबान का ये दौर 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर नाफिज रहा। तालिबान को ऑफिशियली पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और UAE ने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी किया था, लेकिन तालिबान का उसामा बिन लादेन और अलकायदा को पनाह देना उनके डाउनफॉल का सबब बना और इवेंचुअली 9/11 के बाद वार ऑन टेरर शुरू हो गई। जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तालिबान पाकिस्तान में निकल आए, खास तौर पर वजीरिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अंदर। पाकिस्तान अब चूंकि वार ऑन टेरर में अमेरिका का फ्रंट लाइन अलाय था, तो पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जो जंगजू अफगानिस्तान से फरार होकर पाकिस्तान आ रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की अवाम, जिन्होंने कई दहाइयों तक इन जंगजुओं को अपने साथ इस्लाम के मुजाहिदीन के तौर पर ट्रेन किया था, जब उनको पाकिस्तान की फौज के हाथों मरता देखा तो पाकिस्तानी फौज को इस्लाम दुश्मन समझा जाने लगा गया। अब जो इस्लाम का कार्ड एक पावर के तौर पर पाकिस्तान ने यूज किया था, अब गले की हड्डी बन चुका था। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में दहशत गर्दी फैल गई। तमाम कबायली लोग पाकिस्तानी फौज को अमेरिकन फौज कहने लगे और फौज वर्सेस इस्लाम की बाइनरी बन गई। 2002 से 2006 के दौरान कई जंगजू गिरोह पाकिस्तान की आर्मी को शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, सवात और औरगज़ई के इलाकों में अटैक करने लगे। उनके दो मकासद थे, एक शरीयत के कानून का नफाज और दूसरा पाकिस्तान आर्मी की अमेरिका से कतई ताल्लुकी। दिसंबर 2007 में 40 पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स ने इकट्ठे होकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बुनियाद रखी। अब यहाँ पे एक चीज वाज़िया रहे कि पाकिस्तानी तालिबान बुनियादी तौर पर अपने वजूद के लिहाज से अफगानी तालिबान पर डिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन बाद में दोनों के दरमियान ताल्लुकात बने। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का पहला लीडर अब्दुल्लाह महसूद था। बदकिस्मती से जब तहरीके तालिबान बन रही थी, उसी के पैरेलल में 2007 में लाल मस्जिद वाला ऑपरेशन भी हुआ, जिससे मजहबी झुकाव रखने वाली तंजीमों ने पाकिस्तानी फौज पर गैर इस्लामी फौज होने के फतवात जारी किए। इसके बाद पूरे
मुल्क में खून की होली रच गई। पूरे मुल्क में खुदकुश धमाके, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, दहशतगर्दी के वाकयात अपने अरूज को पहुंचने लगे। 2007 से 2014 का दौर टीटीपी के अरूज का दौर था। बैतुल्लाह महसूद और हकीमुल्लाह महसूद की क़यादत में टीटीपी ने तारीख को हिला देने वाले हमले किए। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया। 2009 में आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी पर हमला किया। 2010 में मसाजिद, स्कूल, मार्केट्स में खुदकुश धमाके किए। 2014 में एपीएस पेशावर हुआ, जिसमें 140 बच्चों को दिन के उजाले में शहीद कर दिया गया। अपने दौरे अरूज में टीटीपी ने वज़ीरिस्तान का बड़ा एरिया अपने कंट्रोल में कर रखा था। वहाँ अपनी अदालतें नाफिज की हुई थी और एक पूरी रियासत कायम की हुई थी। 2014 पेशावर आर्मी स्कूल पर हमले के बाद पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब लॉन्च किया गया और उसके फौरन बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ। आर्मी ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया, हजारों जंगजुओं को मौत की घाट उतारा और जो बचे वो अफगानिस्तान फरार हो गए। बदकिस्मती से जैसे ही अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से इनखला किया और अफगान तालिबान दोबारा हुकूमत में आए, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान दोबारा एक्टिव हो गई। इसकी बड़ी वजह ये थी कि इससे पहले टीटीपी अगर पाकिस्तानी साइड पर कोई कार्रवाई करती तो उसको यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना करना पड़ता और अगर अफगानिस्तान में छुपते तो वहाँ अमेरिकन फौज या अफगान हुकूमत उसके अगेंस्ट एक्शन लेती। लेकिन जब से तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान पर काबिज है, तब से अफगान फोर्सेस वाला प्रेशर टीटीपी से उठ गया है। मजीद अब टीटीपी अपनी फोर्सेस को बड़ी प्लानिंग से यूज कर रही है। मिसाल के तौर पे वो केपीके के अलावा दूसरे शहरों पर हमले नहीं कर रहे, बल्कि उनका मेन फोकस केपीके है। दूसरा, वो आम आवाम को डायरेक्ट निशाना बहुत कम बना रहे हैं, जिससे आवाम की हिमायत उनके खिलाफ नहीं है। पिछले जो भी ऑपरेशन टीटीपी के खिलाफ हुए, उनकी वजह से केपीके की आवाम का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। इसकी वजह से अब पाकिस्तानी फोर्सेस की मकबूलियत उन इलाकों में कम है। 2022 में अफगान तालिबान की मदद से टीटीपी और पाकिस्तानी हुकूमत में सीज फायर हुआ, लेकिन वो ज्यादा देर ना चल सका। लेकिन इस सीज फायर में टीटीपी को रीऑर्गेनाइज होने का टाइम मिल गया। उन्होंने अपने मुतालबात ये रखे कि फाटा का 2018 वाला मर्जर खत्म किया जाए। दिसंबर 2024 में अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद टीटीपी ने बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान फोर्सेज पर हमले किए। मार्च 2025 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाकायदा बॉर्डर पर फायर एक्सचेंज हुआ और एक हलाकत सामने आई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर मजीद प्रेशर डालने के लिए अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर करने का अमल शुरू किया। ऑलमोस्ट हर 1-2 माह बाद न्यू डेडलाइन सेटल की जाती। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को निशाना बनाया गया। वो खुद तो बच निकला, लेकिन उनके खानदान समेत कई दूसरे सिविलियन इसमें मारे गए। नूर वली महसूद का बेटा भी इसमें हलाक हुआ। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से न सिर्फ टीटीपी के अगेंस्ट एक्शन लेने का मुतालबा है, बल्कि उनकी ये भी मांग है कि बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाए जो अफगानिस्तान में जाकर पनाह लेते हैं। 2025 में ऑलमोस्ट 2414 लोग टीटीपी और बीएलए के दहशतगर्दी के वाकयात में मारे गए। लेकिन अफगानी थिंक टैंक्स का ये भी कहना है कि टीटीपी के तमाम एक्शंस को अफगान हुकूमत के साथ जोड़ना गलत है और जो स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की, उसमें सिर्फ सिविलियंस मारे गए, जिनमें कोई एक भी टीटीपी का मेंबर शामिल नहीं था। वो पाकिस्तान की इन स्ट्राइक्स को इसराइल की गजा पर स्ट्राइक से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे इसराइल ने हमास के एक्शंस का बदला मासूम फलस्तीनियों से लिया, वैसे ही पाकिस्तान टीटीपी के एक्शंस का बदला अफगान मासूम लोगों से ले रहा है। मजीद उनकी ये भी क्लेम है कि टीटीपी तो पाकिस्तान के अंदर तालिबान के आने से पहले ही मौजूद थी, तो पाकिस्तान हुकूमत अपना गुस्सा मिसप्लेस अफगान हुकूमत पर क्यों निकाल रही है? तो जब अफगान तालिबान हुकूमत में नहीं थे, तो तब टीटीपी को पनाह कौन दे रहा था? अब तालिबान के हमले कबायली इलाकों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि केपी के मेन लैंड में भी इन हमलों में इजाफा हो रहा है। कतर में अमन मुआहिदों से भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। उसकी वजह यह है कि तालिबान इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले सकें और पाकिस्तान टीटीपी के बाकायदा हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बज़ाहिर कुछ अरसे तक सिचुएशन सीरियस ही रहेगी जब तक टीटीपी की मेन लीडरशिप को पूरी तरह से डीफैंग नहीं कर दिया जाता, क्योंकि टीटीपी की डिमांड्स किसी भी इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए काबिल कबूल नहीं है। कुछ मजहबी हल्के टीटीपी के साथ ये कहकर हमदर्दी रखते हैं कि वो शरीयत का ही निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कौन सी शरीयत? क्योंकि टीएलपी वाले तो देवबंदियों को काफिर समझते हैं, देवबंदी भी बदले में यही तासुरात रखते हैं और अहले तशी के बारे में इन सब के नजरियात आग और पानी जैसे हैं। इसी के साथ आज के लिए आपसे इजाजत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।